آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ میونسپل جنرل باڈی میٹنگ میں آج پھر ہوا ہنگامہ، اپوزیشن اور MIM کارپوریٹرز کے تیور ہوئے جارحانہ۔ میئر کی مداخلت کے بعد حالات آئے قابو میں۔ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر اس سال بھی شہر میں نکالا جائے گا جلوس محمدی۔ شہر کمیٹی کے صدر ڈاکٹر شیخ مرتضیٰ نے شہریان سے جلوس کے تقدس کو برقرار رکھنے کی اپیل۔ پروفٹ فار آل مہم کے تحت کفیل ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے یونیورسٹی کے احاطے میں کی گئی شجرکاری۔ امراوتی کے ڈسٹرکٹ ویمنس ہاسپٹل میں پیش آئی آگ لگنے کی واردات کے بعد AMC کا فائر ڈپارٹمنٹ جاگا خواب غفلت سے۔ شہر میں موجود اسپتالوں کو دی گئی فائر NOC کا ڈاٹا نہیں ہے دستیاب۔ متعلقہ شعبے کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ اور جالنہ اورنگ آباد روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ۔ تیز رفتار کار کی زد میں آ جانے کے سبب موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کی جگہ پر ہی موت واقع۔ کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ آج بلائی گئی میونسپل جنرل باڈی میٹنگ بھی ہنگامہ خیز رہی۔ اپوزیشن نے ایجنڈے میں عین وقت پر موضوعات شامل کرنے اور ان کی جانب سے پیش کردہ موضوعات کو ایجنڈے میں شامل نہ کیے جانے کا الزام لگا کر خوب ہنگامہ کیا اور میئر کی ڈائس کے سامنے دھرنا دیا۔ آج منعقدہ میونسپل جنرل باڈی میٹنگ میں بھی ایک بار پھر زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ اجلاس کے آغاز پر امراوتی کے اسپتال میں پیش آئے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کو ایوان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بعد ازاں اپوزیشن نے ایجنڈے میں عین وقت پر موضوعات شامل کرنے اور اپوزیشن کے تجویز کردہ موضوعات کو اجلاس میں شامل نہ کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے میئر کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا۔ اسی دوران میونسپل افسران کی ترقی، ڈپوٹیشن اور PMC کی تقرری کے معاملے پر بھی MIM کے کارپوریٹرز جارحانہ ہو گئے، جس کے باعث اجلاس میں دوبارہ ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آج بلائی گئی جنرل باڈی میٹنگ میں کئی معاملات پر حکمران جماعت اور اپوزیشن کے ارکان آمنے سامنے آ گئے، جس کے باعث کچھ دیر کے لیے میئر کے دفتر کے باہر بھی کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بعد ازاں میئر نے اپوزیشن ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں سمجھایا، جس کے بعد اپوزیشن نے اپنا دھرنا واپس لے لیا۔ دریں اثنا میونسپل کارپوریشن کے افسران کی ترقی اور ڈیپوٹیشن کے معاملے کے ساتھ ساتھ PMC کی تقرری کے مسئلے پر MIM کے کارپوریٹرز نے جارحانہ موقف اختیار کرتے ہوئے انتظامیہ سے جواب طلب کیا۔ کارپوریٹرز نے تقرری اور متعلقہ فیصلوں کے طریقہ کار اور اس کے لیے مقررہ اصول و ضوابط کے بارے میں وضاحت پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ خاص بات یہ رہی کہ میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی میٹنگ کی کارروائی دیکھنے کے لیے اسکولی طلباء بھی ایوان میں موجود تھے۔ طلباء نے مقامی خود اختیاری ادارے کے کام کاج، اجلاس میں ہونے والی بحث اور فیصلوں کے طریقہ کار کو قریب سے دیکھا۔ تاہم اجلاس کے دوران ہونے والے ہنگامے اور کارپوریٹرز کے درمیان ہونے والی تکرار کا بھی طلباء نے مشاہدہ کیا۔ آج منعقدہ جنرل باڈی میٹنگ میں BJP کے کارپوریٹر پرمود راٹھوڑ نے بھی فائر بریگیڈ شعبے کے HOD کی تعلیمی اہلیت اور تقرری کے معاملے پر شدید سوالات اٹھائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ فائر بریگیڈ کے سربراہ آفیسر صرف 10ویں جماعت تک تعلیم یافتہ ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں خدمات میں کیوں برقرار رکھا گیا ہے۔ انہوں نے تعلیمی اہلیت نہ رکھنے والے آفیسر کی تقرری پر بھی انتظامیہ سے وضاحت طلب کی۔ کارپوریٹرز نے مطالبہ کیا کہ حکومت کی جانب سے فائر بریگیڈ محکمے میں کسی اہل اور تجربہ کار آفیسر کو ڈیپوٹیشن پر تعینات کیا جائے۔ ارکان نے کہا کہ شہر میں فائر بریگیڈ محکمے پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے وہاں تعینات آفیسر تعلیمی اور تکنی اعتبار سے اہل اور مکمل طور پر قابل ہونا ضروری ہیں۔ اس معاملے پر میونسپل انتظامیہ کی جانب سے وضاحت پیش کرتے ہوئے بتایا گیا کہ فائر بریگیڈ محکمے میں افسران کی کمی ہے۔ حکومت سے بارہا مطالبہ کرنے کے باوجود ڈیپوٹیشن پر آفیسرز دستیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کے باعث فی الحال اعزازیہ کے بنیاد پر آفیسرز کی تقرری کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے مزید بتایا کہ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطہ کیا جا رہا ہے اور مستقل فائر آفیسر کی تقرری کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے۔
म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने भी जनरल बॉडी मीटिंग में अफसरान की तकर्रुरी और डेपुटेशन से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर तफसीली वजाहत पेश की। कंप्लीट करेंगे, पूरा एजेंडा 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 कंप्लीट करेंगे। हाँ, आणि याच्यामध्ये पत्रिकेने चालणार ना एजेंडा कंप्लीट होणार। मला काय ना कळतो आणि त्याच्यात 5 दिवसाची मुदत आहे मला अहमद साहेब 5 दिवस नाही निदर्शनं सांगून देऊ नका मला कळतं ते 5 दिवस मुभा आहे मला त्याच्यामध्ये कायद्याने आणि मी ती कायद्याने मुभा पाळायचा अधिकार आहे मला बिलकुल जर सदस्य व्यवस्थित बोलले ते विषय मांडले तर सभा होईल आणि जर नाही होणार जर सदस्य मध्ये बोलले तर बोलणार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ट्री अथॉरिटी कमेटी के 3 अरकान के तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सतह पर ट्री अथॉरिटी कमेटी की असरनो तश्कील की जा रही है, जिसके तहत कमेटी में नामजद किए जाने वाले 3 अरकान की तकर्रुरी के लिए अहल अफराद से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है। शहरी इलाकों में दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के लिए महाराष्ट्र शहरी इलाकों में दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त एक्ट 1975 और महाराष्ट्र हुकूमत के 16 जुलाई 2021 की इत्तला के मुताबिक ये अमल शुरू किया गया है। ट्री अथॉरिटी कमेटी में ऐसे माहिर अफराद को नामजद रुकन बनाया जाएगा जिन्हें दरख्त लगाने, शजरकारी, दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त का मतलूबा तजुर्बा हो। इसके अलावा गैर सरकारी तंजीमों से वाबस्ता तजुर्बेकार अफराद और रिटायर्ड सरकारी अफसरान भी इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। कमेटी की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देने वाला शख्स किसी भी सरकारी, नीम सरकारी या मकामी खुद हुकूमती इदारे में मुलाजमत पे फ़ाइज़ नहीं होना चाहिए, जबकि गैर सरकारी तंजीम के नुमाइंदे के तौर पर तकर्रुरी के ख्वाहिशमंद अफराद का सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड गैर सरकारी तंजीम का फ़आल रुकन होना ज़रूरी है। ज़राअत, जंगलात या बागबानी के महकमे से रिटायर्ड क्लास 1 और क्लास 2 अफसरान को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा शजरकारी, दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़, दोबारा शजरकारी या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में खुसूसी इल्म और कम अज़ कम 5 साल का अमली तजुर्बा रखने वाले अफराद भी दरख्वास्त दे सकते हैं। कमेटी के अरकान को किसी भी किस्म का एजाज़िया या अलाउंस नहीं दिया जाएगा। कमेटी की मुद्दतकार जनरल बॉडी की मुद्दतकार तक रहेगी। कमेटी या ट्री अथॉरिटी के फ़ैसलों से मुताल्लिक़ मामलात में म्यूनसिपल कमिश्नर व ट्री अथॉरिटी के सदर का फ़ैसला हतमी होगा। अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद अफराद अपनी तफसीली दरख्वास्त 4 सितंबर 2026 तक चीफ गार्डन ऑफिसर, सिद्धार्थ गार्डन, औरंगाबाद के दफ्तर में जमा करवाएं। दरख्वास्त के साथ CV और मुतालिका दस्तावेज़ात भी जोड़ना लाजमी है। मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जाँच के बाद ट्री अथॉरिटी कमेटी में 3 अरकान को नामजद या मुकर्रर करने का इख्तियार म्यूनसिपल कमिश्नर व ट्री अथॉरिटी कमेटी के सदर के पास रहेगा। वबाई अमराज की रोकथाम की गर्ज से म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से 16 ता 24 अगस्त के दरमियान खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत शहर के तमाम 10 जोन दफातर के हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर गप्पी मछलियाँ छोड़ी गईं। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 19 से 24 अगस्त के दरमियान शहर के तमाम जोन दफातर की हुदूद में 512 मकामात पर गप्पी मछलियाँ छोड़ी गईं। ये मछलियाँ मच्छरों के लार्वा को खाती हैं, जिससे मच्छरों की अफजाइश को कुदरती तरीके से रोकने में मदद मिलती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमा सेहत के मलेरिया शोबे की जानिब से चलाई गई इस खुसूसी मुहिम का मकसद मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ मच्छरों के लार्वा पर हयातियाती तरीके से काबू पाना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर समीर राजूरकर, डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये, अपोजिशन लीडर समीर अब्दुस्साजिद, ऐवान के लीडर गोविंद केंद्रे, मेडिकल असिस्टेंट्स एंड हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता सोलुंके, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे और
ایڈیشنل کمشنر کلپیتا پمبڑے کی ہدایت پر یہ مہم چلائی گئی۔ میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اجولا بھامرے کی رہنمائی اور حیاتیات کی ماہر و متعدی امراض کی آفیسر ڈاکٹر سیدہ سمیہ ناز کی نگرانی میں شہر کے تمام 10 زون دفاتر کی حدود میں گپی مچھلیاں چھوڑی گئیں۔ محکمہ صحت کے مطابق گپی مچھلیاں مچھروں کے لاروا کو کھانے والا ایک مؤثر حیاتیاتی ذریعہ ہیں۔ ان کے ذریعے مچھروں کی افزائش پر قدرتی طریقے سے قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور اطراف میں پانی جمع نہ ہونے دیں، پانی کے ذخائر کی باقاعدگی سے صفائی کریں اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے چلائی جانے والی مہمات میں تعاون کریں۔ مچھروں کی افزائش روکیں، ڈینگو اور ملیریا کو قابو میں رکھیں کہ اس مقصد کے ساتھ میونسپل کارپوریشن اور شہریان کی مشترکہ کوششوں سے مچھروں سے پاک، صحت مند اور محفوظ شہر بنانے کا عزم کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں اور 26 اگست بدھ کی صبح 9 بجے نظام الدین چوک سے یہ جلوس محمدی نکالا جائے گا۔ یہ اطلاع جلوس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر شیخ مرتضیٰ نے MCN کو دی۔ انہوں نے شہریان سے اس جلوس میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے مبارک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے مہم کی معرفت بروز جمعہ شہر اورنگ آباد کے کفیل ایجوکیشن سوسائٹی اور بنت حوا گروپ کے اشتراک سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی میں شجرکاری تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک بامانی صدقے کے طور پر درخت لگانے کے پیغام کو عام کرنے کی بہترین کاوش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے تو اس میں سے جو کچھ بھی انسان، جانور یا پرندہ کھاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے اور یہ نیک عمل تمام انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس نیک عمل کو انجام دینے کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی HOD کیرتی مالنی جادھو، شعبہ انگلش کے HOD ڈاکٹر مستجیب خان، ڈاکٹر شیخ اصغر، ڈاکٹر سہیل ہاشمی، سوشل سائنس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے غیر مسلم طلباء و طالبات نے جوش و خروش کے ساتھ اس یوم شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نیک کام اور انسانیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو خوش اسلوبی کے ساتھ بخوبی حکمت عملی کے ساتھ مکمل کیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے سوشل ورکر وہ بنت حوا گروپ کی چیئرپرسن ڈاکٹر فردوس فاطمہ، سائیکالوجسٹ ثنا وقار، ڈاکٹر شہباز زرین، اظہر شیخ، زورین صدف و دیگر نے اہم رول ادا کیا اور پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کروایا۔ پروفٹ فار آل مہم کے تحت کفیل ایجوکیشن سوسائٹی اور بنت حوا گروپ کی جانب سے عید میلاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یونیورسٹی کے احاطے میں شجرکاری کی گئی اور عوام کو نیک پیغام دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر جہاں، ان کی یوم ولادت پر 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے پہلے 12 دن ہر تنظیم کے جگہ، ہر اسکول میں اور سبھی مسلم اداروں میں سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپس رکھے جاتے ہیں، کئی سیرت النبی کے جلسے رکھے جاتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جلوس محمدی اورنگ آباد شہریان کی طرف سے جلوس محمدی نکالا جاتا ہے۔ یہ جلوس عید میلاد النبی انتظامیہ کمیٹی شہر اورنگ آباد کی جانب سے پچھلے 35 سال سے با احترام اور شانتی کے ساتھ یہ جلوس نکالا جا رہا ہے۔ یہ جلوس شروع ہوتا ہے نظام الدین چوک سے صبح 9 بجے
पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद रीजन और उनका पूरा अमला ये जुलूस के इब्तिदा में ये लोग शरीक होते हैं और तमाम जिम्मेदारान मौजूद शख्सियात और इंतज़ामिया कमेटी के लोगों का पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस्तकबाल किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि ये जुलूस को किसी भी तरह से शांतता से और अच्छे ढंग से इसको इख्तिताम तक लाया जाए। ये जुलूस शुरू होता है सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन चौक से, राजा बाजार से होते हुए नवाबपुरा, रनौसपुरा, जिंसी चौक, कैसर कॉलोनी, चंपा चौक, शाह बाजार, लोटा कारंजा, मोमिनपुरा, बुड्डी लेन, वापस वहाँ से होते हुए जुना बाजार, सिटी चौक, शाहगंज के पुतले के पास से वापस ये जुलूस अपने तौर पे इख्तिताम के लिए निज़ामुद्दीन चौक पे पहुंचता है। निज़ामुद्दीन चौक पे और शहर के कई मुख्तलिफ जगहों पे परचम कुशाई होती है और निज़ामुद्दीन चौक पे आखिरी परचम कुशाई होकर जुलूस की कामयाबी पर असदुल्ला खान और तर्रार फैमिली की जानिब से सलाम पढ़ा जाता है और दुआ के बाद इसका इख्तिताम किया जाता है। शहर जुलूस कमेटी के सदर डॉक्टर शेख मुर्तज़ा ने शहरियान बिलखुसूस आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपील की है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस और नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जुलूस में शिरकत करें और जुलूस में ऐसा कोई काम न करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि जुलूस के दौरान दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए बारगाह रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत का इजहार करें। उन्होंने शहरियान से जुलूस को कामयाब और पुरअमन बनाने में इंतज़ामिया के साथ ताउन करने की भी अपील की है। जुलूस मोहम्मदी आप जिस शान से निकाल रहे हैं और जिनकी शान में निकाल रहे हैं उसका एहतराम करते हुए आप पूरी गश्त के दौरान दुरूद शरीफ का विर्द करते चलें, मिलाद पढ़ते चलें और डिसिप्लिन के साथ चलें। जो सरकार के कानून हैं दिए हुए, डीजे का इस्तेमाल न करें। डीजे का इस्तेमाल न करते हुए भी जुलूस में ऐसी कोई हरकत न हो कि किसी भी तंजीमों के बीच तनाज़ा पैदा न हो। जैसे गवर्नमेंट के पास भी ये रिपोर्टिंग है कि भाई कई फ़िरक़े, कई लोगों को जुलूस अच्छा लगता है, कई लोग बोलते कि ये जुलूस बिदअत है, कई लोग इसका अपोज करते हैं, कई लोग तंजीमें इसका। हमको जुलूस जो है ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खुशी के लिए, ये ईद इसलिए कहा गया है कि ये खुशी का दिन है। हमारी नज़र में ये ईद दूसरे 2 ईदों से बड़ी है, लेकिन ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है। ये जो है हम ईद के मौके पर खुशी से शहरियान औरंगाबाद की जानिब से निकल रहे। सभी की जिम्मेदारी है कि इसको डिसिप्लिन के साथ निकाला जाए, सभी की जिम्मेदारी है कि इसको एहतराम के साथ चला जाए, सभी की जिम्मेदारी है कि आपस में तनाज़ा न पैदा हो, सभी की जिम्मेदारी है कि किसी का दिल न दुखे और ईद की जैसी मनाई जाए। पटाखों पे पाबंदी है, डीजे के वॉइस पे पाबंदी है। सरकार जो चाहती है, जगह जगह खाने होते हैं, हमारी कोशिश ये है कि खानों में भी मीठा खाना पकाते हैं हम, बहुत अच्छी बात है, और कोई दूसरी तरह से खाने पे कोई भी तनाज़ा न पैदा हो, बदनज़मी न पैदा हो, इसकी हमको पूरी मुमकिन कोशिश करना चाहिए। ये किसी एक की बस की बात नहीं है, तमाम शहरियान का कोऑपरेशन, और हम ये चाहते हैं कि उन सब ने मिलकर ये जुलूस को आशिक़ान रसूल जो अपने आप को लोग बोलते हैं, उन्होंने ये जुलूस को कामयाब बनाना चाहिए। माजूर अफराद के मुख्तलिफ मसाइल पर कांग्रेस विकलांग सेल और दीगर NGOs के एक वफ़द ने पूना पहुँचकर मुतल्लिक़ा कमिश्नरेट से नुमाइंदगी की और जॉइंट कमिश्नर से मुलाकात करके एक मतलबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। कांग्रेस दिव्यांग सेल औरंगाबाद की जानिब से दिव्यांग आधार विकास संस्था, नेशनल दिव्यांग अधिकार मंच समाजी तंजीम और मधु तारा दिव्यांग सेवा सोशल फाउंडेशन महाराष्ट्र के ताउन से माजूर अफराद के मुख्तलिफ मतालबात के सिलसिले में महकमे माजूरीन बाइख्तियारी कमिश्नरेट महाराष्ट्र पुणे में एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर महकमे माजूरीन बाइख्तियारी कमिश्नरेट की जॉइंट कमिश्नर संगीता डावखरे से माजूर अफराद के मुख्तलिफ मसाइल और मतालबात पर तफसीली गुफ्तगू की गई।
میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ معذور افراد کو انتظامی سطح پر مختلف سرکاری اسکیموں کا مؤثر فائدہ پہنچایا جائے۔ 18 سال سے زائد عمر کے معذور افراد کے لیے آدھار کارڈ حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی جائے اور آدھار کارڈ کے بعد معذور افراد کو UDID یعنی یونیک ڈس ایبلٹی ID کارڈ فراہم کرنے کے عمل کو آسان اور مؤثر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ معذور افراد کے گزر بسر اور با اختیاری کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ نئے حکومتی فیصلے کے تحت عائد کی گئی بعض دشوار اور سخت شرائط پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں نرم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اسی طرح معذور افراد کے مسائل کے مؤثر حل کے لیے ریاستی انتظامیہ اور معذور افراد کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی مشترکہ ایکشن کمیٹی تشکیل دی جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کانگریس دیویانگ سیل کے شہر صدر مرزا ذکی بیگ کی قیادت میں نیشنل دیویانگ ادھیکار منچ کے ذمہ داران بھی اس وقت میں شامل تھے۔ लगातार 3 दिवसापासून पुण्यामध्ये होते आणि त्यांना मी कॉल केला सगळ्यांना आणि ते कॉलवर माझी इथं आले, मला सहकार्य केलं आणि दिव्यांग बांधव संघ आणि आमची आज संयुक्त मॅडम इथले डावरकर मॅडम संगीता मॅडम चर्चा झाली। त्या चर्चेमध्ये ते म्हणाले की आम्ही लवकरात लवकर दिव्यांगांना न्याय मिळवण्याचं काम करू, दिव्यांगांच्या जे मागणे आहे त्यांना आम्ही शासनापर्यंत पोहोचू आणि लवकर मागण्या पूर्ण झाल्याच्या बाद आम्ही तुम्हाला पत्र पाठवू, सगळ्यांना पत्र देऊ। आमचे 2 मुद्दे होते। एक पहिला मुद्दा होता की शासनानं संजय गांधी निराधार जे मानधन अनुदान आहे त्याच्यावर अटी लावलेली आहेत, ते अटी आम्हाला रद्द करून द्या, कारण हा दिव्यांग असा घटक आहे की तो। नाजरीन, नए तालीमी साल का आगाज़ होने के बाद 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले सानवी स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को निसाबी किताबें नहीं दी गई थीं। इस ताल्लुक़ से हमने MCN पर ख़बर दिखाई, जिसका असर हुआ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीमात ने आनन फानन इन तलबा के लिए निसाबी किताबें फ़राहम करवा लीं। नए तालीमी साल के आगाज़ के बाद 2 माह का एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सानवी स्कूलों में ज़ेर तालीम 9वीं और 10वीं जमात के तलबा में नई दरसी किताबें तकसीम नहीं की गई हैं। इस तरह की न्यूज़ हमने MCN पर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और आनन फानन में मुतल्लिक़ा शोबे ने सानवी स्कूलों में ज़ेर तालीम 9वीं और 10वीं जमात के तलबा में नई दरसी किताबें तकसीम कर दी हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फ़ंड से इन तलबा के लिए दरसी किताबों का इंतज़ाम किया गया है और बाल भारती से किताबें दस्तयाब होते ही उन्हें फ़ौरी तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 17 सानवी स्कूलों में पहुंचा दिया गया है। म्यूनसिपल स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को हुकूमत की जानिब से दरसी किताबें फ़राहम की जाती हैं, जबकि 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फ़ंड से किताबें फ़राहम की जाती हैं। रवां तालीमी साल के आगाज़ में 9वीं और 10वीं जमात की नई दरसी किताबें बाल भारती के पास दस्तयाब नहीं थीं। इस तरह का जवाज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीमात की जानिब से दिया गया है। उनका कहना है कि तलबा की तालीम मुतासिर न हो, इसके लिए म्यूनसिपल स्कूलों में गुज़िश्ता साल की दरसी किताबें तालीमी साल के पहले ही दिन तलबा को फ़राहम कर दी गई थीं। इस इक़दाम से तलबा का तालीमी नुकसान होने से बच गया। दरी असना 22 अगस्त 2026 यानी हफ्ते को बाल भारती के पास 9वीं और 10वीं जमात की नई दरसी किताबें दस्तयाब हो गईं। इसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीमात ने बग़ैर किसी ताख़ीर के बाल भारती से किताबें हासिल कर लीं और उन्हें फ़ौरी तौर पर तमाम 17 सानवी स्कूलों में तकसीम कर दिया गया। नई दरसी किताबें दस्तयाब होने के बाद तलबा की तालीमी सरगर्मियों को मज़ीद रफ्तार मिलने की तवक्को भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीमात की जानिब से ज़ाहिर की गई है। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व शोबे तालीमात के HOD अंकुश पांढरे की रहनुमाई में मुकम्मल की गई। अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए 17 अगस्त को उम्रा अदायगी के लिए रवाना हुए 56 अफराद का काफ़िला मदीने मुनव्वरा पहुंच गया है, जो ईद मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मदीना ही में क़याम करेगा। नाजरीन, अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़ेर एहतमाम 17 अगस्त को उम्रा की अदायगी के लिए औरंगाबाद शहर से रवाना होने वाले 56 आज़मीन मदीने मुनव्वरा पहुंच गए हैं, जहां आज़मीन किराम रोज़े अक़दस पर हाज़री देकर सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं।
17 अगस्त को शहर से रवाना होने वाले इस काफ़िले ने पहले मक्के मुकर्रमा में क़याम किया, जहां आज़मीन उम्रा ने उम्रे की सआदत हासिल करने के साथ साथ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी की। इसके बाद काफ़िला मदीने मुनव्वरा पहुंचा। मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद तमाम आज़मीन ने रोज़े अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी और आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद व सलाम पेश करते हुए अपनी वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। आज़मीन ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी और इबादत का शर्फ भी हासिल किया। यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी आज़मीन का ये काफ़िला मदीने मुनव्वरा में ही क़याम करेगा। इसके बाद ये काफ़िला दोबारा मक्के मुकर्रमा रवाना होगा, जहां हरम शरीफ में नमाज, तिलावत और इबादत का शर्फ हासिल करने के बाद 2 सितंबर को वतन वापसी के लिए रवाना हो जाएगा। ये इत्तला अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के टूर ऑपरेटर मोहम्मद वसीम ने दी है। उन्होंने बताया कि उम्रे का अगला काफ़िला भी तैयार है और उसे 7 सितंबर को रवाना किए जाने का इम्कान है। उन्होंने ख्वाहिशमंद आज़मीन से अपील की है कि अगले उम्रा काफ़िले में शामिल होने के लिए सिटी चौक में वाक़े अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर से राब्ता करें। एसके प्लास्टिक नामी दुकान पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक ने छापा मारा और दूसरी बार भी दुकान में ममनुआ प्लास्टिक का ज़ख़ीरा पाए जाने पर दुकानदार पर 25,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एसके प्लास्टिक नामी दुकान, जिसके मालिक संजय आसाराम कटारे हैं, उनके खिलाफ दूसरी मरतबा कार्रवाई की गई है। इससे पहले 23 अप्रैल को भी इसी दुकान से 560 किलो ममनुआ प्लास्टिक जब्त करते हुए 25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया था। इसके बावजूद दोबारा ममनुआ प्लास्टिक रखने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दुकान पर मज़ीद 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया। मंगल की इस खुसूसी मुहिम के दौरान शहर से मजमूई तौर पर 1340 किलो ममनुआ प्लास्टिक जब्त किया गया। ये कार्रवाई नागरी मित्र पथक के देवीदास सुसर, जनार्दन सांगड़े, बालाजी साबड़े और म्यूनिसिपल अहलकार किशोर नाड़े और आनंद चावरिया की टीम ने अंजाम दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक बंदिश की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों को सख्त इंतबाह भी दिया है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारी इदारों के खिलाफ सिर्फ जुर्माने तक कार्रवाई महदूद नहीं रहेगी, बल्कि बराह रास्त पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी और मुताल्लिक़ा दुकान को मुस्तकिल तौर पर सील भी किया जाएगा। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने ताजिरों से रियासती हुकूमत के प्लास्टिक बंदी से मुताल्लिक़ क़वानीन पर सख्ती से अमल करने और कॉरपोरेशन के साथ ताउन करने की अपील की है। अमरावती के डिस्ट्रिक्ट वुमेंस अस्पताल में पेश आए आग लगने के वाक़े के बाद शहर में मौजूद अस्पतालों में फायर सेफ्टी का मामला संगीन होता दिखाई दे रहा है। फायर डिपार्टमेंट के पास शहर में मौजूद अस्पतालों को दी गई एनओसी का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। नाजरीन, हाल ही में अमरावती के डिस्ट्रिक्ट विमेंस हॉस्पिटल के NICU वार्ड में वेंटिलेटर के धमाके के बास लगने वाली आग में 3 नौज़ायदा बच्चों की मौत के वाक़े के बाद औरंगाबाद शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी का मसला एक बार फिर संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। शहर के सरकारी अस्पताल यानी घाटी दवाखाने की सुपर स्पेशलिटी इमारत की फायर NOC की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद उसकी तजदीद नहीं की गई। दूसरी जानिब मिडी घाटी अस्पताल में फायर सेफ्टी का निज़ाम तो नस्ब किया गया है, लेकिन इस निज़ाम के लिए बनाए गए पानी के हौज़ में पानी ही मौजूद नहीं है। ऐसे में हंगामी सूरत हाल में फायर सेफ्टी निज़ाम कितना मौसर साबित होगा, इस पर सवालिया निशान लग गया है। सबसे तशवीशनाक बात ये सामने आई है कि शहर के 350 से ज़ायद निजी अस्पतालों की फायर NOC और फायर सेफ्टी निज़ाम से मुताल्लिक़ ताज़ा और जामे मालूमात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास दस्तियाब ही नहीं हैं। घाटी अस्पताल के बच्चों के शोबे में फायर सेफ्टी निज़ाम फ़आल होने की बात कही गई है, ताहम सुपर स्पेशलिटी इमारत के फायर सेफ्टी निज़ाम की फायर NOC की तजदीद नहीं हुई। अब अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से NOC के रिन्यूअल के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। अस्पतालों जैसे हसास मकाम पर फायर सेफ्टी की कानूनी मंजूरी का बर वक्त रिन्यूअल न होना एक संगीन मामला करार दिया जा रहा है। कई अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम और एक्सटेंशर नस्ब किए गए हैं, लेकिन उनकी बर वक्त तजदीद कारी न होने की शिकायत सामने आ रही हैं।
بعض मकामात पर एक्सटिंक्शर की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद उन्हें सिर्फ दीवार पर लटका कर रखा गया है। 6 माह पहले गजानन महाराज रोड पर वाक़ एक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद एसी में तकरीबन 6 माह पहले आग लग गई थी। इस वाक़े के बाद मरीज़ों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा था। इस तरह के वाक़यात से अस्पतालों में मौजूद फायर सेफ्टी निज़ाम की हकीकी कारकर्दगी की बाकायदा जाँच की ज़रूरत मज़ीद वाज़ेह हो गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड महकमे की जानिब से सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए फायर एनओसी हासिल करना लाजमी है। ताहम शहर में कितने अस्पतालों ने एनओसी हासिल की है, कितनी एनओसीज़ की तजदीद हुई है और कितने अस्पतालों में फायर सेफ्टी निज़ाम मौजूद नहीं है, इसकी जामे और ताज़ा मालूमात महकमे के पास दस्तयाब न होने के सबब अब फायर ब्रिगेड महकमे ने निजी अस्पतालों की फायर एनओसी की जांच शुरू कर दी है। इसके बाद निजी अस्पतालों का फायर ऑडिट भी किया जाएगा। इस दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम, आलात की मुद्दतकार, एनओसी की कानूनी हैसियत और फायर सेफ्टी निज़ाम की अमली कारकर्दगी की जांच किए जाने का इम्कान है। अस्पतालों जैसे इंतहाई हसास मकामत पर फायर सेफ्टी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल वाज़ेह न होने के बास म्यूनसिपल इंतज़ामिया के तरीक़े कार पर भी सवालात उठ रहे हैं। जालना म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने जालना शहर में बंद स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए। इसके बावजूद शहर के कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिसके सबब मुताल्लिक़ा शोबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जालना शहर की खूबसूरती में इजाफा करने और रात के वक्त शहर को रोशनी से मुनव्वर रखने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं। ताहम देखभाल व मरम्मत के फुक़दान के बास कई स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं, जिससे इस पूरे इंतज़ाम पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जालना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से शहरियान को अंधेरे में रास्ता तय करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर शहर से मुत्तसिल अहम सड़कों पर कुछ स्ट्रीट लाइट्स रोशन हैं तो कुछ बंद हैं, जिसके बास गाड़ी चलाने वालों के लिए हादसात का ख़तरा बढ़ गया है। अंधेरी सड़कों की वजह से शहरियान की सलामती का मसला भी पैदा हो गया है। बाज़ इलाकों में चोरी की वारदातों के खदशे पर शहरियान की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ऐसे में स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च किए जाने वाले फ़ंड्स और शहरियान को मिलने वाली हकीकी सहूलत के दरमियान फ़र्क क्या है, ये सवाल जालना के शहरियान की जानिब से उठाया जा रहा है। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और देखभाल के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। शहर के रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम कर लिया गया है, जबकि गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान तकरीबन 80 से 90 हाई मैक्स स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की गई है। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोमल गावंडे ने दी है। आइंदा गणेश फेस्टिवल की आमद के पेश नज़र शहर की स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए खुसूसी ड्राइव शुरू कर दी गई है। गणेश उत्सव से कबल ज़्यादा से ज़्यादा बंद स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा रोशन करने की कोशिश इंतज़ामिया की जानिब से की जाएगी। एक तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल और मरम्मत पर बड़े पैमाने पर फंड्स खर्च किए जाने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब शहर के कई इलाकों में अब भी अंधेरे का राज बरकरार है। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया की ये मरम्मती मुहिम कितनी मुअस्सर साबित होती है और क्या गणेश फेस्टिवल से पहले जालना शहर वाकई रोशनी से जगमगा उठता है। इस पर अब जालना के शहरियान की नज़रें मरकूज़ है। जालना शहर महानगरपालिकेमार्फत नागरिकांच्या सोयीसाठी आपण पथदिवे दुरुस्ती करण्याचा ड्राईव्ह हाती घेतलेला आहे। माननीय महापौर, उपमहापौर तथा आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांच्या आदेशान्वये आपण शहरातील नागरिकांच्या जशा तक्रारी प्राप्त होत्या त्या अनुषंगाने पथदिव्यांचं दुरुस्ती करत आहोत। त्याचबरोबर शहरातला रिंग रोड, ज्या रोडवरनं बहुतांश वाहतूक आपल्या शहरातली असते त्या रिंग रोडचं मेंटेनन्स मंठा चौफुली ते रेल्वे ओव्हरब्रिज पर्यंतचं आपलं मेंटेनन्स झालं आहे। त्याच पुढे विशाल कॉर्नर ते अंबड चौफुली इथले स्ट्रीट लाईट्सचं मेंटेनन्स आपण केलं आहे आणि इतर लाईट्सचं मेंटेनन्स आपलं सद्यस्थितीत सुरू आहे। आणि शहरातील हायमास्ट पथदिवे एक 80 ते 90 पथदिवे साधारणतः 1 ते 1.5 महिन्यात आपण आतापर्यंत दुरुस्त केलेले आहेत। तसेच गणपती श्री गणेशांची आगमन होणार आहे, तर त्या दृष्टीने आपण मेंटेनन्सचं ड्राईव्ह हाती घेतलेला आहे व त्यांचे मेंटेनन्सच्या लोकांची टीम वाढवून
आपण अधिकाधिक शहरातील मेंटेनन्स करून नागरिकांसाठी सुखसुविधा स्ट्रीट लाईट बद्दल प्रोव्हाइड करणार आहोत. हा आपला जालना शहर महानगरपालिकेचा मानस आहे. ज़िला जालना के मज़ाफ़ात वरुड़ बुजुर्ग और डबलखेड़ा के दरमियान नदी पर पुल न होने के सबब पुलिस एहलकारों और मकामी साकिनान को शदीद मुश्किलात का सामना है. हालात की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस जीप को टीन और ड्रम की मदद से तैयार की गई आर्जी कश्ती के ज़रिए दरिया पार कराना पड़ रहा है. नाजरीन, किसी वारदात के बाद जाए वक़ूफ़ पर पहुँचने, तफ्तीशी सामान ले जाने या मुलजिमीन को लाने के लिए पुलिस एहलकारों को इस नदी को अबूर करना पड़ता है. पुल न होने की वजह से बारिश के मौसम में पानी की सतह बढ़ने पर मुश्किलात मज़ीद संगीन हो जाती हैं. सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि वरुड़ बुजुर्ग, डोलखेड़ा और अतराफ़ के शहरियान भी मुतासिर हैं. तलबा, किसान, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को रोज़मर्रा आमदरफ्त में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, जबकि हंगामी हालात में मरीज़ों को अस्पताल पहुँचाना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है. मकामी साकिनान ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि दरिया पर मजबूत और मुस्तकिल पुल तामीर किया जाए ताकि पुलिस समेत शहरियान की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके. जालना औरंगाबाद रोड पर दावलवाड़ी इलाके में महको कंपनी से करीब पीर की शब एक कार और मोटरसाइकिल में भयानक तसादुम हो गया. इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स के शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की भी इत्तला है. ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक GJ05 CP4461 नंबर की कार और MS21 AW 9605 नंबर की मोटरसाइकिल के दरमियान ज़ोरदार टक्कर हो गई. तसादुम इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हादसे में गणेश बाबूराव एंगड़े, साकिन खामगांव, तालुका अंबड़ और सैयद फारूक सैयद अमर अली, साकिन संजय नगर, जालना की दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि महलूक सैयद फारूक औरंगाबाद के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज अपनी बीमार वालदा से मुलाकात के लिए जा रहे थे. ताहम वालिदा से मुलाकात से पहले ही सड़क हादसे ने उनकी जान ले ली. इस अफसोसनाक वाक़े से इलाके में गम की लहर दौड़ गई है. दरी असना हादसे में हारून शेख, साकिन अक्कल कुआं, ज़िला नंदुरबार शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की इत्तला है, जिन्हें जालना शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे की इत्तला मिलते ही मुतल्लिका हुक्काम और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं. हादसे की मज़ीद तफ्तीश बेट मार्शल रंजीत मोरे कर रहे हैं. इस हादसे ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि शाहराहों पर रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए रफ्तार पर काबू रखना और मुकम्मल एहतियात बरतना किस कदर ज़रूरी है. जालना शहर में एक खातून ने मोती तालाब में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन चंदन झीरा पुलिस ने मदाखलत करते हुए उसकी जान बचा ली. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर किरण बिड़वे ने पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया. पुलिस ने खातून पर किसी किस्म का दबाव डाले बगैर तहम्मुल और हमदर्दी से बातचीत की और उसकी काउंसलिंग की. इब्तदाई तौर पर पता चला कि शौहर के साथ तनाज़े के बास खातून ज़हनी तौर पर परेशान थी. पुलिस की हसास मदाखलत और मुअस्सर काउंसलिंग के बाद खातून ने खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया. बाद अज़ां पुलिस ने खातून को बहिफाजत उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया. चंदन झीरा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, सब्र और हसास रवैये के बाद एक खातून की कीमती जान बच गई. इस कार्रवाई पर पुलिस इंस्पेक्टर किरण बिड़वे समेत पूरी पुलिस टीम की सताइश की जा रही है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. म्यूनिसिपल जनरल बॉडी मीटिंग में आज फिर हुआ हंगामा. अपोजिशन और MIM कारपोरेटर्स के तेवर हुए जारहाना. मेयर की मुदाखलत के बाद हालात आए काबू में. पैगंबर आखिर उज़्मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर इस साल भी शहर में निकाला जाएगा जुलूस मोहम्मदी. शहर कमेटी के सदर डॉक्टर शेख मुर्तज़ा ने शहरियान से जुलूस के तक़द्दुस को बरकरार रखने की अपील. प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत कफील एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से यूनिवर्सिटी के अहाते में की गई
امراوتی کے ڈسٹرکٹ ویمنس ہاسپٹل میں پیش آئی آگ لگنے کی واردات کے بعد AMC کا فائر ڈپارٹمنٹ جاگا خواب غفلت سے. شہر میں موجود اسپتالوں کو دی گئی فائر NOC کا ڈاٹا نہیں ہے دستیاب. متعلقہ شعبے کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان. اور جالنہ اورنگ آباد روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ. تیز رفتار کار کی زد میں آ جانے کے سبب موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد کی جگہ پر ہی موت. واقع کیس درج، تحقیقات جاری. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.